We have got positive response from all the departments and schools and hospitals. ہاں بالکل, اور یہ چیز واقعی میں ایسی ہے کہ ہر کوئی ساتھ دیتا ہے, بہت خوشی ہوتی ہے کہ. اور باسط آپ بتاؤ. جی میں فوجی بنا تھا, میں ملک کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل کے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ فوج بالکل پھنسی ہوئی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں جنگ. See the difference. تو بہت اچھا لگا, اور انہوں نے مجھے یہ شیٹ بھی دی. ان دنوں میں انہوں نے ٹائم نکال کر ہم سے ملے اور بہت اچھا لگا. اچھا بارش صاحب یہ جو ہے نا کوئی چھوٹی موٹی وہ نہیں ہے. میں جب ان کے ساتھ وہاں پہ تھا, ایک میک اے وش کو بھی انہوں نے شیلڈ دی, ایک ان کو بھی دی. بڑے بڑے بریگیڈیئرز جو ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے اپنے چیف سے ملنے کی, وہ نہیں پوری ہوتی. کہاں وہ جناب, یہ وہ فوٹوگراف ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں کہ باسط کھڑا ہوا ہے, اور کچھ اور دیکھ باسط کی جو بچوں نے فوج کو جوائن کیا ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ پریزنٹڈ بائی جنرل اشفاق پرویز کیانی, چیف آف دا آرمی اسٹاف, یہ ان کو دی گئی ہے, جو ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے, اور ہمارے ادارے کو بھی ملا ہے. اور میں فوج کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے دیکھیے ایک پازیٹیو میسج جو دیا جا رہا ہے نا, اور یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے جو بچی ہیں, نیو جنریشن ہیں, وہ ان کے جو ہیرو ہیں وہ فوجی ہیں, مطلب وہ فوج کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اور اسی طرح مجھے نہیں معلوم تھا کہ پی آئی اے کے کیپٹنز جو ہیں ان کو بھی بچے جناب ایڈور کرتے ہیں, اور یہ دیکھیے کہ کیپٹن ان کے کتنا خوش نظر آ رہا ہے. بھائی کیپٹن مجھے بھی جہاز میں لے چلو نا پلیز نا. یہ جگہ چہرن پہ آئے نا روشنی ہے زندگی جو امنگ, یہ اساں کے کھپے اصل میں. اچھا بھائی اب آپ فیمس, اب یہ بتاؤ کہ تو چلو تمہیں گانا آتا ہے, ہی از اے گڈ سنگر, گڈ سنگر. تم فیمس ہو جاؤ گے. کوئی سا چھوٹی سی آشا. دل ہے چھوٹا سا, چھوٹی سی آشا, مستی بھرے من کی بولی سی آشا, چاند تاروں کو چھونے گی آشا, آسمانوں میں اڑنے گی آشا. دل ہے چھوٹا سا, چھوٹی سی آشا. ویری گڈ, بہت اچھا گایا آپ نے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ایسے ہی رہو, ہے نا, میرے ساتھ روز روز پروگرام کرو, ٹھیک ہے بھائی. مجھے تو باقی میں محبت ہو گئی اس سے. ہاں بالکل, میں تو اب روز ڈیلی اس کے ساتھ پروگرام کروں گی, اور یہ ہمارے ساتھ فیمس ہو جائیں گے. فیمس ہو گیا نا آلریڈی, بہت سیریس ہوں. ہم لوگ روز ساتھ میں پروگرام کریں گے اور ساتھ میں فیمس ہوں گے, ہے نا. اچھا, اور آپ لوگوں کو گانا آتا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا, فائٹ کریں گے. اور یہ فوجی کو تو فائٹ کرنی ہے نا. جی, دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور ملک کو بچانا ہے. چلو جی, ایک طرح ہم سلوٹ کریں نا, کیانی کو سلوٹ کروں گا. اب پارا صاحب چاہیے کہ میں جب جی ایچ کیو گیا اور میں نے ننھے بچوں کو دیکھا جو سلوٹ کر رہے تھے اپنی چیف کو دیکھے, ایک تو وش یہ تھی کہ ہم فوجی بنیں گے, وہ ان کی ہو گئی. اور ایک دوسری وش یہ کہ جناب کیانی صاحب سے ملنے یہ جا رہے ہیں. ہاں, کیانی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں, اور جب ہم ان کو لے کے وہاں پہ گئے ہیں اور کیانی صاحب ملے, اور یہ چھوٹے چھوٹے سے ماشاءاللہ یہ اسٹال, تو یہ جو ان کو سلوٹ کر رہے تھے سب کو, اور کیانی صاحب اس کو جانتے تھے. باسط ہاؤ آر یو, ان کی ناٹ اونلی ان کی خیریت دریافت کی. بعد میں ان بچوں نے, ایک بچی بھی تھی ان کی جس کے انکل کی سیاچن میں ڈیتھ ہو گئی تھی, اور وہ کمانڈوز تھے پاک فوج کے, اور اس کی یہ تھی کہ میں اپنے انکل کے اس پہ چلتے ہوئے ایک دن کے لیے میں کمانڈو بنوں گی. تو اس کے وہ یہ تھا کہ میں آپ کی وائف سے بھی ملنا چاہتی ہوں. تو پھر سب بچوں کو جناب بھیجا گیا جہاں پہ وہ کیانی صاحب کی وائف سے جا کے ملے. اور ایسے وقت میں انہوں نے ٹائم دیا ان بچوں کو, جب تو ان کی خوشی ڈبل ہو گئی کہ ناٹ اونلی دے بیکیم فوجی آلسو اینڈ دے میٹ دیئر چیف ایز ویل, جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہ ہماری جو فوج ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں. اور جب تک اس طرح کے بچے ہیں نا, میں آپ کو بتلاؤں کہ دہشت گرد کبھی جو ہیں وہ اپنے ناباقا اس کی جو This hourly clock is brought to you by
इनके खराब इरादे हैं उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये बच्चे देखिए जिंदगी की रेत इनके हाथ से निकल रही है, मगर अगेन दे वांट टू जॉइन द आर्मी, जो एक बहुत बड़ी चीज है। Actually, they are giving message to other kids. और मैं वही अभी बात कहती हूँ, बच्चे तो बहुत दूर की बात, जो बड़े लोग समझदार लोग वैसे होते हैं वो भी वो तो एकदम से एग्जाम्पल फॉर देम, लेकिन बहुत बहुत ग्रेट एग्जाम्पल्स, और माशाल्लाह से इन सबके चेहरे सुपरस्टार। हाँ, मेरा सुपरस्टार है ये तो इन सबके चेहरे देख कर ही ना इतनी खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। और इवन मुझे खुद वो रहा है कि अब तो मैं भी भाई फेमस होंगी, मैं और अच्छा प्रोग्राम करूंगी, है ना, फिर मैं भी फेमस होंगी, अब मुझे भी विश बनानी चाहिए। यू आर मोस्ट वेलकम इन मेक अ विश फाउंडेशन। बिल्कुल, आई एम सीरियसली, मैं ये ऑनर बात सच्ची में कह रही हूँ। इंशाल्लाह अनीला विल बी इन टच विद यू, बिकॉज़ हमेशा याद रखें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इदारा होता है वो जब तक लोग साथ नहीं हों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि देखिए मुल्क में इस वक्त जो अंधेरे छाए हुए हैं हमारे और इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर आज हम ये डिसाइड कर लें कि हम अपने हिस्से की एक शम्मा जलाएंगे, हर एक, आप डिसाइड कर लें, मैं कर लूँ, अनीला कर लें, आप यकीन करें कि अंधेरे काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। एक और मैं आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि एक बच्चा जब एक सुबह वॉक करने गया समंदर पे, तो उसने देखा कि रात को समंदर में बहुत तेज़ी थी और सैकड़ों मछलियाँ जो थी वो आ गई किनारे पे और तड़प रही थी। तो उस बच्चे ने जल्दी जल्दी मछलियों को उठा के दोबारा डालना शुरू कर दिया। एक आदमी का गुजर हुआ, उसने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो, तो सैकड़ों हजारों मछलियां हैं, कितनों को तुम क्या कर सकते हो इनके लिए। उसने एक मछली को डालते हुए कहा कि मैं कम से कम इसकी जिंदगी में बचा सकता हूँ। इसी तरह पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो लाइलाज मर से मुब्तला हैं और उनके ख्वाहिशात होंगे, मगर हम कम से कम जिन बच्चों को इन टच रहते हैं उनका ख्वाब तो पूरा कर सकते हैं। और अगेन लाइक आई सेड कि ये ख्वाहिश नहीं है, ये इनका ख्वाब है, और जब ख्वाब पूरा होता है तो इन बच्चों के चेहरे पे जो खुशी आपको नजर आ रही है, आपको खुद खुशी महसूस होती है कि एटलीस्ट यू ब्रॉट सम हैप्पीनेस एंड जॉय इन देयर लाइफ। और जिंदगी हेल्थ एंड फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज। और वही ना कि हर इंसान के लिए मेरे ख्याल से जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है कि जो दूसरे के चेहरे पे वो स्माइल देख रहा है, तो वो उसे पता होता है कि यार मेरा इसमें थोड़ा सा था। तो वाकई में, और बहुत ये तो बहुत अच्छी बात है इसमें का विश जो है, और वाकई में आप जीनी की तरह हो एक छड़ी और विश पूरी हो जाती है ना। हाँ, तो भाई हमारे आकिब तो अब हमारे साथ होंगे, इसको तो मैं जाने ही नहीं दे रही कहीं भी, तुम मेरे साथ रहना बस, ठीक है? चलो सही है। हाँ, फिर ये जहाज लेकर आएगा तो हम दोनों जहाज में घूमने जाएंगे, फिर उसको भी रखेंगे। फौजी को आजकल हालात सही नहीं है ना। गार्ड भी हो गया। हाँ, और वैसे ये जहाज कैसा उड़ाया तुमने? अच्छा उड़ाया था, है ना? लोग कह रहे होंगे बाबा हमारा पायलट यार इतना अच्छा था, हम तो डर रहे थे, है ना? और बासित आपने, आपको कैसा लगा था? मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई थी। अच्छा, बचपन से यही चाहते थे कि फौजी बनना है, हिफाजत करना? कब से? ये क्यों हुआ था? वो मूवीज देखते थे बहुत, आर्मी मैं मिली नगमे देखता था जो मुल्क के लिए फौजी काम करते हैं, और मुल्क पर बुरा वक्त आए तो आर्मी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं फौजी, तो इसलिए मुझे मुल्क की हिफाजत करना अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि मुल्क के हालात सीधे हो जाएं और हर बंदा अपनी से ज़िंदगी गुजार सके, और मुल्क की हिफाजत करना वो अपने मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं है। मुल्क को सलाम करता हूँ। और हम आपको सलाम करते हैं कि आप इतने छोटे से हो, इतने क्यूट, और माशाल्लाह से इतनी अच्छी सोच है आपकी। अगर हर इंसान पता है आपसे सीख लेगा ना ये सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा। तो अच्छा, क्या उम्र क्या है बासित की? बासित 10 years। 10 years। आप उसामा? ये 13 years। ये 13 years। हाँ, बड़े भाई हैं। तो ये तो भाई तब अब देखो, अब उम्रें भी मिलने लगी है यार, मैं भी 16 साल की हूँ। चलो 3 साल तो चल सकता है, बड़ा 3 साल तो बड़ा चल सकता है ना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। आज इनके वालिद बतला रहे थे माशाल्लाह, ये बस सो एक्साइटेड, जिसको जब पता लगा कि सुबह आ रहा हूँ तो बतला रहे हैं कि ये रात भर सोया नहीं है जनाब। और ये रात को बतला रहे थे कि ये रोजाना 2 बजे उठ के इसकी अपनी लाइफ शुरू होती है। ये एक्टिंग करता है, मुझे बतला रहा था कि मैं जब मम्मी डैडी सो जाते हैं तो फिर मैं एक्टिंग करता हूँ। तो मैंने कहा कौन सी एक्टिंग करते हो? बोलता है कभी मैं भाई और बहन की एक्टिंग करता हूँ, कभी शोहर की और वाइफ की करता हूँ। शोहर और वाइफ में क्या करते हैं बेटा? आप एक्टिंग क्या करते हैं? एक्टिंग करके बताओ, ये तो बताओ, पता ही नहीं था। गेट द चांस, जल्दी से बताओ। हाँ बताओ, चलो जल्दी से बताओ।
दोस्त मेरा का मोबाइल छीन गया, भाई मैं क्या करूं? तो आप बताओ मैं क्या करूं अभी? अभी मैं मोबाइल पे वो उसने मेरा मोबाइल निकाल लिया, तो अभी अच्छा, अभी हस्बैंड और वाइफ वाली क्या? हस्बैंड वाइफ वाले क्या है? अभी मैं आ रहा हूँ यार, जानू मैं अभी आ रहा हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। प्लीज मैं भी बाइक पे हूँ, अभी ट्रैफिक बहुत हो रहा है। देखो बाइक रोको, मुझसे बात करो, तुमने कल प्रॉमिस किया था। ओहो, अभी मैं क्या करूँ? अभी तुम बस जल्दी से आ जाओ, वरना मैं आ रही हूँ वहाँ पर। अभी मैं जल्दी से बाइक निकाल के आ रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। वाह, ये तो हमारे एक्टर भी है ना? ये कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं यार, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो सीखना चाहती हूँ मैं तुमसे एक्टिंग, है ना? वाह, डायरेक्टर भी हमारे पास है। बिल्कुल। तो और ये अभी ये बच्चे जैसे घर पर होते हैं अपने, तो ये आपके डेली आप लोग इनसे मिल रहे होते हो या हमारा ये होता है कि पारस दे बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ की, और हमें इनसे इतनी उनसियत हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली कई बच्चे आज हमारे साथ नहीं हैं जिनकी हमने विशेष पूरी की, मगर इन टच रहते हैं। और कभी कभार जैसे मुझे अनिल बता रही थी, कुछ बच्चों की जो विशेष पूरी की रोजाना कॉल करते हैं, इनसे पूछते हैं आप कैसी हैं, क्या है। और अगेन माशाल्लाह के इनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हुई है अब जब से हमने इनकी विशेष को पर किया। मुझे इस वक्त ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि इनमें अब जिंदा रहने का जज्बा पैदा हो रहा है, मतलब। और ख़ास तौर पे बासित का, तो उन्होंने जो एक दिन की इसको ट्रेनिंग दी थी जनाब, जिसके अंदर ये एक रात इसने बैरिक के अंदर सोया है फौजियों के साथ, सुबह उसने उठा दिया था, वो जो सुबह उनका होता है ट्रेनिंग कराई है, इसने गन चलाई है, ये टैंक में बैठा है जनाब। तो रात को जब उन्होंने एक बड़ा खाना किया इसके लिए, जिसके अंदर जनरल साहब भी मौजूद थे, तो आप यकीन करें सबकी आंखों में आंसू थे। वो एक दिन में इतने मानूस हो गए थे इस बच्चे के साथ। और अब ये हो रहा है कि जितनी उनकी तकरीबात होती हैं ये उसमें मौजूद होता है। और मुझे वहाँ पे मौजूद कोई एक कर्नल साहब बता रहे थे कि अगर उस दिन सपोज इनके जंग हो जाती तो इसको भेजना पड़ता, बिकॉज ही वॉज द पार्ट ऑफ द आर्मी ऑन डेट डे। बिल्कुल मैं जाता, मैं जरूर जाता। बिल्कुल। चले जी, इन बच्चों के लिए हमारे पास कुछ गिफ्ट है, तो जल्दी से गिफ्ट ले आए ताकि मैं हर बच्चे को दे दूं। और प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा रह गया असल में, तो ये बेबा ये आपके लिए। चलो भाई, हम तो इनको उठकर देंगे ना, हम इनको। थैंक यू। बिल्कुल। और ये हमारे पायलट के लिए, ये लो पायलट। थैंक यू। चलो यही रख देते हैं। ये हमारे फेमस, यार ये तो आधा आधा करेंगे ना, आप तो हम एक है। ये इनके लिए। और ये नीला आप फाउंडेशन के लिए। बिल्कुल, है ना? अब तो हम तो एक है ना, अब हम क्या करें, हम तो एक ही हो गए, है ना? चलो, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू। और दूसरी चीज ये कि हम बिल्कुल आपको दोबारा भी बॉदर करेंगे। एक हमारी जो बच्ची है जिसको कुकिंग का है, उसको जरूर प्लीज आप लोग कुकिंग सिखाइएगा। ये होस्ट भी आएंगे ना आपके पास, ये प्रोग्राम करेंगे ना, प्रोग्राम होस्ट करेंगे। आज तो चांस नहीं मिला ना। बिल्कुल, हाँ। ये और मैं पूरा एक दिन प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है ना? चलो, ये तो मेरा बच्चों के साथ ही रख लें ना, उसमें आप कुकिंग वाली भी बुला लें और एक अच्छा सा ऐसा बना लेते हैं। बिल्कुल, ऐसा करते हैं और जल्दी से ये करते हैं। गेस्ट भी हुई और हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चले, सही है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। और आप भी थैंक यू। छोटे से बच्चों, थैंक यू सो मच कि तुम लोग मेरे प्रोग्राम में आए। पता है मुझे इतनी खुशी हो रही है, और सच्ची में अब थैंक यू ये थे, बहुत ज्यादा थैंक यू कि तुम लोग से मैं मिली। पारस थैंक यू, और केटीएन का भी शुक्रिया कि इतना यूनिक प्रोग्राम आज उन्होंने मॉर्निंग का रखा है। आई एम श्योर एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को मिला होगा। और जो व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आए, हमें ज्वाइन करें और हम ये डिसाइड करें कि कोई बच्चा पाकिस्तान का जो भी उसकी ख्वाहिश है हमने पूरी करनी है। वाकई में चलें और हम इन्हीं बच्चों की ख्वाहिशात को तक जैसे पूरा किया है थोड़ा सा, और जिन बच्चों की ख्वाहिशात है उनको भी हम पूरा करेंगे। और अगर कोई ऐसे बच्चे भी हो तो आपको मेक अ विश फाउंडेशन को मतलब लोग कांटेक्ट कर ले, है ना? ठीक, बिल्कुल। चले, सही है नाज़रीन, वरी असां मिलंदासीं तव्हां सां सुभाणे न, ओ सॉरी, सैटरडे संडे आहे, यानी कि असां मिलंदासीं तव्हां सां मंडे ते। जी हाँ नाज़रीन, त तव्हां पंहिंजो इलाही घणो ख्यालु रखिजो, इन सभिनी ॿारनि जे लाइ दुआ कंदा रहिजो ताकि इन्हनि जूं विशेस पूरियूं थियूं, ऐं हीअं ई ख़ुशि रही सघनि, इन्हनि जूं मुस्कुराहटूं ईअं ई क़ाइमु रही सघनि इन्हनि जे चेहरनि ते। त नाज़रीन, मिलंदासीं मंडे ते। पंहिंजो ऐं पंहिंजे प्यारनि जो ख्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।